ओके तमन्ना जी, हमने देखा यहाँ के ढेर सारे कलेक्शन आप बहुत ही ध्यान से देख रही थी। आई थिंक विंटर कलेक्शन है, करेक्ट? सो एंड पार्टी। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ईशा अमीन जो बहुत ही पॉपुलर स्टाइलिस्ट है बॉलीवुड के लिए, एंड ऑल्सो टुडे शी इज़ टर्न्ड अ डिज़ाइनर एंड शी इज़ done a collection specifically for Azza, which is a store which you're in right now. And it's specifically made from the perspective कि अभी party season है and there are lots of people जो इस season के लिए shopping करना चाहते कर रहे हैं, and so it's a great time to shop for your party wear. And उनका speciality ये है कि उनके जो कपड़े हैं they're very comfortable to wear, at the same time they have the right amount of edge, so you feel like you stand out when you wear her collection. But most importantly it's comfortable, क्योंकि हम काफ़ी सारे औरतें होती हैं जो पार्टीज़ में घुसती तो हैं, कपड़े पहन तो लेते हैं, बट हम इतने अनकम्फर्टेबल होते हैं ना, I can't explain to you. But what I like about Isha's clothes is they don't trap you, you feel comfortable, you can move, you can hang, you can stay in them for hours and hopefully party really long. जी, क्योंकि Ma'am, what do you like to say about the collection you have seen before? So I have seen Isha doing a lot of blacks before, but मुझे बहुत खुशी हुई है देखे, वो मुझे कलर बहुत पसंद है. So I've seen a lot of color happening now, so I'm like, okay, now this is like, I love wearing a lot of color, but of course today I'm wearing a nice black dress, which I think is very comfortable. ईशा कलेक्शन जी, जो मैंने आज पहना है because Isha is a friend, she also styles me a lot. मैं उनके support में आज यहाँ पर आई हूँ, and I hope लोग आएँ, इनका कलेक्शन पसंद करें, एंजॉय करें. एंड तमन्ना जी, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि शादी का सीज़न चल रहा है, अवार्ड का सीज़न चल रहा है, और मतलब ये तो हम ऐसे कलेक्शन आपको कभी देखेंगे शादियों में, या लाइक मतलब पार्टी टाइप्स में, या यहाँ के I ईशा know के there are, कलेक्शन? of course मैं वो हमेशा काफ़ी सारे बार मुझे स्टाइल करती है, एंड आई लव टू वेयर हर क्लोथ्स, एंड आज शुरुआत आज इससे की है, होपफुली और ऐसे चलता जाए और भी अच्छे अच्छे कपड़े बनाए. एंड हम ढेरों सारी बातें आपसे कर चुके हैं कि क्रिसमस प्लान आपका क्या कुछ होने वाला है, न्यू ईयर. Yeah, actually I don't have any plans. Tomorrow is my birthday, but I don't have plans yet. So for me Christmas is a very relaxed period of the year, because normally पूरा साल काम करने के बाद it's these few days that you get to take a break and rest. मैं अभी किसी से बात करी तो बता रही थी कि स्कूल में हम जब होते थे तो we used to wait, अच्छा एग्जाम्स खत्म होएंगे तो फिर क्रिसमस वेकेशन शुरू होगा. अभी भी कुछ नहीं बदला, अभी हम क्रिसमस वेकेशन के लिए ही रुक रहे हैं. So it's great. I'm very happy that Christmas is coming, and it's a season where I'm going to chill, enjoy with my family, and be with my friends. According to you, what is a true style statement? According to you. True, I think it's very important you understand your own personality. Like मुझे तो बहुत वक्त लगा ये समझने के लिए मेरी खुद की पर्सनालिटी में कपड़ों में कैसे रिफ्लेक्ट कराऊँ. So I think it took me really long to figure that out, but now whatever I wear I feel really comfortable in it. Otherwise I don't wear it, and it could be any designer, it could be any label. It's gone beyond that point where it's labels and designers. It's more about how I feel when I wear an outfit. And what do you like to wear? Means What I like to wear, I think it depends on season, it depends on occasion, but I think I'm mostly comfortable in a lot of formal wear. I naturally dress formal. It's like even if I have an option to choose between a shirt and a t-shirt, I'd wear a shirt. So my personality is such that I like to wear formal clothes. क्योंकि तमन्ना जी, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो ऐसे कौन कौन से स्टाइलिश एक्टर हैं फीमेल जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, जिन्हें आप सोचती हैं you कि like हाँ, to follow? ये बहुत In the ही- recent times, I would definitely say I love Kangana's dressing style. I really like Sonam's. Of course, Sonam is like, she's probably started all of this, so I really like the way she dresses. And I think आजकल सभी बहुत एफर्ट लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक एवरीबडी इज वेरी कॉन्शियस. नॉट ओनली पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो नहीं भी होते हैं वो भी बहुत ही नॉलेज रखते हैं, वो भी बहुत फॉलो करते हैं, सब ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं. दे ऑल आर अपडेटेड, बट येस, आउट ऑफ द सेलिब्रिटीज आई थिंक इट बी कंगना एंड सोनम. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you so much. सबसे पहले तो अज़ा के कलेक्शन पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप भी प्रेजेंट हैं. क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड है इस विंटर एंड पार्टी कलेक्शन को लेकर? वेल एक्साइटेड तो नहीं हूँ, बट मुझे पता चला अज़ा पीपल कॉल्ड एंड दे टोल्ड मी दैट दे हैविंग एन एग्जीबिशन बाय अ न्यू डिज़ाइनर ईशा अमीन. और तो मैं ये देखना चाहती थी कि किस तरह के डिज़ाइनर हैं, किस तरह के आजकल जो क्लोथ्स
fashions that are coming to the market are very innovative, बहुत creative और नए तरह किस्म के drapes, flows. So I was curious to see कि क्या किस तरह का है और मुझे भी अच्छा लगता है अलग-अलग किस्म के dresses try करना. So I just came to take a look at it. ये एक अटायर हम आपको देख रहे हैं तो ये ईशा अटायर नहीं ये तो ऐसे ही है. But अच्छा collection है. It's a western, more on western line. थोड़ा इंडो वेस्टर्न है but ज़्यादा करके western collection है और थोड़े स्टाइल्स हैं जो स्ट्रैपी और ऑफ शोल्डर वगैरह जो मैं पहनती नहीं हूँ बट मैं अपने लिए भी देख रही हूँ और मेरी अपनी डॉटर के लिए भी देख रही हूँ जो अच्छा लगे जैसा लगे. Getting a good idea, fair idea of what her styling kind of style is. So कितने कलेक्शन कितने अटायर आप परचेज करने वाली अपने लिए डॉटर के लिए फैमिली पता नहीं परचेज का तो मैंने सोचा नहीं अभी मैं आई हूँ परचेज का तो सोचा नहीं मैंने अभी तक. एट द मोमेंट आई एम स्टिल लुकिंग एट इट ट्राइंग टू सिंक इन कि क्या है क्या नहीं है और एक आइडिया मिल जाएगा इन फ्यूचर ऑल्सो जब कभी मुझे इस तरह का ड्रेस मैं ढूंढ रही हूँ या अपने लिए अपनी बेटी के लिए सो आई नो दैट आई कैन लुक फॉर दिस डिज़ाइनर्स ड्रेस. हम देख रहे हैं कि शादी का सीज़न चल रहा है अवार्ड सीज़न चल रहा है तो हम ईशा के कलेक्शन को देखेंगे आपको शादी या अवार्ड सीज़न में नॉट पार्टी. मेरे हिसाब से शादी में तो नहीं बट हाँ अवार्ड फंक्शन इवेंट्स में पहन सकते हैं. काफ़ी अलग अलग किस्म के काफ़ी क्रिएटिव अनयूजुअल पैटर्न्स हैं तो और आजकल तो पीपल आर ट्राइंग और एक्सपेरिमेंटिंग जैसे कि हर चीज़ में एक्सपेरिमेंटिंग चल रहा है वैसे ही फैशन में तो ख़ास तौर से तो अच्छे कुछ सम पैटर्न्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच अलका. इतनी ब्यूटीफुल फिल्म आई आपकी इतनी ब्यूटीफुल अटायर में आप हैं इतनी ब्यूटीफुल लिपस्टिक इतने ब्यूटीफुल मेकअप क्या कहना चाहिए आज की शाम को लेकर. डेफिनेटली ऐशा अमीन की इवेंट है आज और ऐशा अमीन इज़ अ वेरी गुड स्टाइलिस्ट और आज जो मैंने ड्रेस पहना है ये भी उनका ही है which is a proper formal outfit with a nice cape jacket and I think this is very much in fashion. आजकल लोग ये बहुत ज़्यादा पहन भी रहे हैं and I think for girls when they wear formals I really like it because you know it's a very kick-ass feeling. एक तो थोड़ा girly side भी आ जाता है साथ ही साथ you feel that little manly side also. I don't know why so maybe I'm talking something weird but I think I like that mix of a girl and a boy look together. So I think yeah I love it. I love the color. This is one of my most favorite color purple. Obviously मैंने ये overall look को style किया है और attempt किया है कि कुछ you know एक formal look के साथ मैंने diamond earrings को pair किया है. Yours ईशा. ईशा जी सब आपके आने से पहले यहाँ पर आपके कलेक्शन की आपके अटायर की बहुत ही तारीफ हुई. अरे वाह, that's very kind. I mean, Sana's doing perfect justice to my clothes. She's carrying them off so beautifully. I love how she's teamed up the blazer suit with like diamond earrings, white diamonds. Yeah. I think she's looking stunning. And thank you. Yeah, I loved it. और ये ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे. ये jewelry is from Zilver. They are the one who sponsored this earring for me for tonight. I think actor बनने का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है सब कुछ फटाफट sponsor हो जाता है इस events के लिए which is very nice and I think मैं you know जब मेरी फिल्म भी आई थी और जब मैं प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी थी आई रियली थैंक एवरीबॉडी बिकॉज यू नो उनकी मदद के बिना आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस एक्टर्स कैन लुक दिस ग्रेट बिकॉज एवरी डे नए ड्रेसेस पहनना नई ज्वेलरी पहनना जो हम फ्लॉन्ट करते हैं हमारे इंस्टाग्राम में इज़ डेफिनेटली उन लोगों की मेहनत है जो इस लुक को टीम अप करने के लिए हमें मदद करते हैं और मेरे जितने भी स्टाइलिस्ट रहे हैं चाहे वो प्राची फ्रॉम वायरल मंत्रा हो या मेरे डिज़ाइनर्स हो रिपी हो डिम्पल अमरीन हो जितने भी हो आई थिंक मैं उनको रात को 12 बजे भी फ़ोन करती हूँ तो बेचारे दूसरे दिन मेरे लिए ड्रेस रेडी कर देते हैं एंड आई थिंक हर एक्टर का खूबसूरत लगने में और हर रोज़ डिफरेंट लगने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है एंड गिवन अ चांस आई थिंक आई वुड ऑलवेज लव टू थैंक देम एंड डेफिनेटली माई
staff, makeup and hair, which is very very important because उनके बिना we are nothing in a way. Because आजकल हर चीज़ इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लग गई है, स्पेशली अगर आप 19-20 भी अगर आपका हो जाए तो सडनली आप एक बैड ड्रेस्ड में आ जाते हो. तो आई थिंक वो इतना लोग अभी इतने फैशन कॉन्शियस हो गए हैं दैट एवरीबडी इज मेकिंग दैट एफर्ट टू लुक देयर बेस्ट एंड दे आर विद अ स्क्वाड, लाइक अ प्रॉपर स्क्वाड, यू नो. हर किसी के 5 लोग घर में होते बाहर आने से पहले. वह स्टाइलिस्ट, मेकअप, there's hair, there's boy, there's this. So I think now it's a very nice thing that people have become fashion savvy. हर एक इंसान fashionable हो गया, even commoners today. मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं when I see young girls and I see young boys, I see how well dressed they are, and that really surprises me because when I was in my college, I never used to look like that. मैं तो तेल लगा के चोटी बांध के कॉलेज जाती थी. So I think when I see this today, obviously मैं कोई पुरानी जनरेशन की नहीं हो गई हूँ, बट जो ये स्पेशली जो ये 10 साल में डिफरेंस आया है इज़ लाइक टोटल कहते हैं ना, एक टोटल रेवोल्यूशन जैसा हो गया है मेरे लिए. इट हैज़ चेंज्ड सो मच एंड हाउ एंड इट्स नाइस. ये ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ, नाम लेना चाहेंगे? जिल्वर, मैंने आपको बोला ना, ब्रांड का नाम है जिल्वर. नहीं, किसने गिफ्ट किया? गिफ्ट नहीं किया है भाई, वापस करना है. ऐसा होता तो फिर मुझे आफ्टर फ्यू इयर्स शायद स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती. कलेक्शन की बात करें मैम, आपने अभी कलेक्शन देखा, उसके बारे में कह सकते हैं? जी ऑनेस्टली मैंने वो एक ही रो देखा, उसके बाद मैं सबसे मिलके इधर आ गई. तो अभी बहुत सुंदर है. एनी विच वेज ऐशा के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं. शी रियली स्टाइल्स वेरी वेल. हर क्लोथ्स आर क्लासी, फंकी, लाउड, एवरीथिंग. इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. और हर इवेंट के लिए एक लुक होता है. सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. एंड बाकी का कलेक्शन देखना बाकी, बट आई एम लविंग वट एवर आई एम सीइंग एंड आई होप आई गेट टू, if I like something, I hope I get to try them on. फिल्म की अगर मैं बात करूँ सना जी, तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको, या आपके दोस्तों से या आपके रिलेटिव जो आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? आई थिंक मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है द गर्ल्स कॉम्प्लीमेंटिंग मी, बिकॉज आजकल की लड़कियां सिर्फ एक दूसरे की बिचिंग करने में लगी होती है, विच इज़ वेरी वियर्ड. तो जब लड़कियां आपकी तारीफ़ करती है, लड़के तो ऑब्वियसली करते ही है, यू नो, दैट्स वो जेंडर ही वो है जो लड़कियों की तारीफ़ करता है. बट यू नो जब लड़कियां तारीफ़ करती है लड़कियों की, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. और ये सपोर्ट दिखाते हैं, जैसे मैंने कल भी आई थिंक स्टार्टस में आपको कहा था कि बहुत मायने रखता है. बिकॉज अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आप बोलते हो मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं वुमेन इश्यूज़ को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आप वहीं एक दूसरी लड़की को देख के हाई भी नहीं बोलते हो. मैं ऐसे कुछ लोगों को अभी भी जानती हूँ जो बहुत अच्छे बनते हैं, सडनली दे बिहेव एज इफ दे डोंट नो मी. बट हम तो ऐसे नहीं, आप लड़की हो, कोई लड़की, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, आप में से कोई लड़की नहीं हो. नहीं, लड़के ऐसे नहीं करते, बट लड़कियों में थोड़ी आदत है. तो आई थिंक जब मूवी रिलीज हुई और अब तक भी इतने सारे लड़कियां मुझे भेजती रहती है, यू आर माई वुमेन क्रश, एंड आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. इट्स अ वेरी स्वीट थिंग टू से. एंड व्हेन गर्ल्स अप्रिशिएट यू, देयर इज नथिंग लाइक इट. बिकॉज मेरे लिए गर्ल्स का व्यू इज़ द अल्टीमेट व्यू. और काफ़ी लोग मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेज के बताते हैं. सम पीपल टेल माई फ्रेंड्स I want to wear what she's wearing, this, that. So it feels really, really nice, yeah. You know, there are a lot of there were a lot of guys who complimented me in a very nice way, where they said, you know, we want to get married to her, which is a very sweet thing. Especially लड़कों के दिमाग में कुछ और ही चीज़ें आती है when they see you doing an erotic scene. But जब इंसान आपको कोई रिस्पेक्ट से बोलता है, I have seen today मेरी फ्रेंड की मॉम 40 लेडीज को लेके बजा तुम हो देखने गई. They've just sent me the pictures and it feels great, and everybody is texting me, please tell her that she's so good, we loved the film, and more importantly I'm happy that people are talking about the film. So सना जी, एक आखिरी सवाल कि 2017 में इस तरह की वजह तुम हो जैसी कोई फिल्में हम आपकी और भी देखेंगे डिफरेंट. सी आई डोंट नो, अभी वजह तुमको तो जस्ट रिलीज हुई है. अब जो भी कास्टिंग इट्स हैपनिंग फ्रॉम जैन. मेरे पास 1-2 स्क्रिप्ट आई है विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन एक्शन थ्रिलर्स, एंड बट इट्स अ थ्रिलर. So I'm not sure, let's see क्या होता है. But definitely from Jan I want to put in that effort and see कि I do more of variety stuff and I do different things. Thank you. अज़ा के यहाँ पे कलेक्शन पे हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. आपको कितना पसंद आया, स्पेशली ये पार्टी एंड विंटर कलेक्शन है जहाँ तक आज़ा जो एक रूफ है जिसके अंदर ना बहुत सारे डिज़ाइनर कलेक्शंस मिलते हैं फ्रॉम इंडियन टू वेस्टर्न टू एवरीथिंग. एंड टुडे आई एम हियर स्पेशली फॉर ईशा, क्योंकि ईशा बहुत ही अच्छी दोस्त है और जय हो में और हेट स्टोरी के जो प्रमोशंस हैं वो दोनों के लिए मुझे स्टाइल किया था उन्होंने. एंड
एज आई सेड शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, और जहाँ उनका कुछ ऐसा लॉन्च होने वाला होता है या वट एवर इट इज़, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर। और ये अटायर भी हम जी, ये ईशा ने ही बनाया है। इट्स अ वेरी सिंपल ब्लैक आउटफिट एंड विच completely says me, मुझे properly justify करता है, because I like to keep it very simple, very neat and that's it. ज्वेलरी आती पसंद नहीं करती आप? मैं नहीं, मैं ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मतलब मुझे डेंटी जो एकदम डेलिकेट चीज़ें हैं वो पसंद है, जैसे या एक रिंग हो गई या छोटे सी ईयरिंग्स हो गई। सो नॉट समथिंग वेरी हैवी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी ऐसा हम कह सकते हैं जिससे ज्वेलरी मे बी आई मीन क्योंकि मैं घर में दूसरी चाइल्ड थी, आई वॉज द सेकेंड चाइल्ड इन द हाउस। मेरी बड़ी बहन है, तो बहन वी वर 2 sisters, बट आई वॉज मे बी ब्रॉट अप एज अ बॉय, सो टॉम बॉय इंस्टिंक्ट्स ज़्यादा है मेरे अंदर। थैंक यू सो मच। देवी जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, हमने देखा बहुत ही ध्यान से आप सारे कलेक्शन को देख रही थी, यहाँ पे ईशा और ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप क्या कहना चाहेंगे और कितना पसंद आया आपको विंटर एंड पार्टी कलेक्शन? विंटर पार्टी कलेक्शन बहुत पसंद आया। इट्स वेरी ट्रेंडी एंड वेरी वेयरेबल एट द सेम टाइम, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट ईशा। शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग girl, and it's really she has done a superb job, excellent job, and she's very creative, very innovative. I can see in her work. I'm glad, really enjoying looking at the beautiful stuff. एंड ईशा जी, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं शादी का सीज़न भी चल रहा है, अवार्ड सीज़न भी चल रहा है, तो हम देखेंगे इनको आपके कलेक्शन में ढेर सारे। I will be always honored to have ma'am wearing my collection, and today she's here to support me, and that means the world to me. Thank you so much. Your projects, about your project, and you are working with Nawaz Mirza. जी, हम लोग इस वक्त guys don't dive into the topic. So उसके लिए अलग टाइम दूंगी, ज़रूर बात करेंगे। Shiva, we have your own style statement, but personally अगर बात करें, what are you more comfortable in, Western or Indian? I am very comfortable in track pants. And कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऑफ डेज में आपको उनका स्टाइल स्टेटमेंट अच्छा लगा है बॉलीवुड से? सबका स्टाइल्स बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट नेम वन बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल, सो दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। And one question, like people are eagerly waiting to see you back on screen. English का people are like expectations बढ़ गई आपसे, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? What are you working on? वेल, उसके लिए और टाइम है। When the time comes, definitely I would like to talk about my upcoming film. और आपकी डॉटर भी उनकी भी फिल्म लॉन्च होने वाली है। Wait and watch. जानने के लिए काफी आप कितनी एक्साइटेड हैं, इतना तो जानना चाहेंगे? नहीं, बहुत जल्दी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। When the time comes. Thank you, guys. चलो, थैंक यू। और बहुत हो गया।